प्रदूषण की समस्या दिल्ली में है, इससे हर आदमी त्रस्त है। दिल्ली कभी बड़ी स्वच्छ होती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऐसा नहीं बनाया कि लोग उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। हमने फ्लाईओवर्स ज्यादा बनाए ताकि लोग कार ज्यादा इस्तेमाल करें। जो कारें खरीदी जा रही है वो सारी की सारे लगभग 99% कारें जो हैं वो आप लोन पर ले रहे हैं। बिल्कुल। वो जो कार है वो आपकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो बैंक की है। अलाउद्दीन खिलजी का रूल है जिसने गुजरात में खासकर इतने ज्यादा इन्वेजन्स हुए हैं उसके। औरंगजेब और उसका जो क्रॉनिकलर है, स्टेट क्रॉनिकलर, वो अपने बारे में कुछ लिखवाना चाह रहा है। वो औरंगजेब को कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। रानी की वाव से करीबन 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा पॉन्ड है। सरस्वती रिवर कभी जो हुआ करती थी, जो एक्सटिंक्ट हो गई है, वहां से वो पानी आता था, उस पॉन्ड में जमा होता था। पानी जो है फिल्टर करके और फिर जाके रानी की वाव में जमा होता था। The book written by our Prime Minister and the vision which was there when he was a CM. So do you see that the things were implemented well? A scholar you often see on a national and international news channels decoding the complex relationships between humans and nature. Please welcome Professor Dr. Vipul Singh Ji. Vipul sir is a senior professor at the Department of History, University of Delhi, with over 25 years of teaching experience. After his doctorate from Delhi University, he earned his postdoctorate from LMU in Munich, Germany. Sir's achievements are truly world-class. He is prestigious Carson Fellow at the Rachel Carson Center in Munich. He received the Best Teacher Award from the Government of Delhi. As of now, January 1st, 2026, he has been nominated as the Council Member of the Asian Association for Environmental History, also known as AAEH. He has even reviewed the PM Modi's first book on climate change, Convenient Action, written during his time as the Chief Minister of Gujarat. Vipul sir, a very warm welcome to the show. Thank you, Roshan. And thank you, ITM SLS Baroda University, for inviting me here. So you reviewed PM Modi's first book when he was a CM of Gujarat. He wrote his first book on climate. And I think he's one of those people, especially a prime minister, who has talked about climate change and has written a book on it. So, sir, I would like you to elaborate on this topic. Yes, I remember that. In fact, I reviewed that book. That is still, that reviews on the website of the Government of Gujarat Climate Change Department. और मुझे याद है ये किताब, I think this book was inspired by one documentary that became very popular in the early 21st century, the first decade of the 21st century. It was titled as The Inconvenient Truth. It was an inconvenient truth, which was basically a documentary by Al Gore, who was the Vice President of United States. और basically उसमें climate change का जो problems है, world जो face कर रहा है, उसके बारे में चर्चा थी। और बहुत कुछ बताया गया था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 200 इयर्स कैसे चेंज हो रहा है क्लाइमेट। लेकिन उसके बारे में उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको लेकर बहुत कुछ नहीं कहा गया था। नाउ दिस इज द बुक विच वाज रिटन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. इट्स टाइटल्ड एज क्लाइमेट एक्शन. आई थिंक दैट वाज मोर अबाउट द मॉडल दैट वाज that was implemented in Gujarat when he was the chief minister here. And the measures that he took over the last 10 or 15 years of his chief ministership, like, coming up with the solar power plants. And I can see even, when I was roaming around Ahmedabad and Vadodara today, I was roaming, all the buildings, most of the buildings here in Vadodara and Ahmedabad would have a solar plant on the rooftop. That's something very incredible. No, you don't see this in other parts of India. So, and that is not only one.
I mean, there were many wind energies that were generated. Many wind energy plants were set up. All these and many other things that the Gujarat government had actually done in order to check the climate change. All these were explained in that book called Climate Action. So that book is that way a very interesting book. It is a kind of a model that can be used for other states, and that's why I mean people might have forgotten that book, but I think that book is one of the best books to be followed as a model for various parts of the countries. The book written by our Prime Minister, our current Prime Minister, and the vision which was there when he was a CM. So do you see that the things were implemented well at present, if you see the scenario in Gujarat? So there are, there has been change over the years. Over this, I mean, when he was the chief minister, he did actually work many things. He did implemented many things. But at the national level also, now you can see that the government of India is coming up with the electric vehicles, e-vehicles. Yes. They are, promoting solar energy. All these are actually, the models that have come from Gujarat. These are the models. The early form was seen in Gujarat when he was the chief minister, and now at the national level, you can see all these models being replicated. So I think that way, as I said, that this can be a very effective way of checking the climate change that is happening. Although we cannot actually change what is happening today, because climate change is a natural phenomena. At the same time, it is also a man-made phenomena, what we call in history as Anthropocene. So it is human-induced, but then what humans have done, that it has speeded up the process. So climate change का जो process है, जो speed है, उसको हमने बहुत तेज कर दिया, because हम लोग इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं environment में. So मुझे लग रहा है कि उसको चेक करने के लिए हमें different other measures लेने हैं. हालांकि बहुत सारे contradiction है. Contradiction मैं इसलिए कहता हूँ कि कई बार at the national level, there are at the same time you see the government taking measures which are against the environmental norms. Yes. So there are contradictions, but I think if we really want to improve, if we really want to do something to protect the environment, we should do something for the protection of the environment. And changing, we should not check the rivers, we should not control the rivers, we should not build dams, we should not increase the height of the dams, all that. So these are few of the things. We should not, we should stop deforestation on the hills. So these are few of the measures that can be taken, which has, long-term implications for the country. And India is a country which has a long tradition of protecting the environment. Yes. So when we talk about, long in, Indian knowledge tradition, we should, we should try to imbibe those long Indian knowledge tradition which we had, जिसमें वेदों में पढ़िए, पुराणों में पढ़िए, सब जगह ये लिखा हुआ है कि भाई हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. तो वो चीज़ें हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का वो भी पार्ट है. सो देयर आर अदर लाइक मैथमेटिकल नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है, वो भी इंडियन नॉलेज है, बट देन एनवायरनमेंट का भी एक नॉलेज है जो भारत में बहुत सालों से है, वर्षों से है. तो हम उसको कैसे मॉडर्न कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट के साथ साथ ला सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. So currently you're also working on a book about global climate anomalies during the Mughal rule. Is there a common thread between how Mughals managed climate crisis and the modern convenient action we see today? It was in a similar context to what we just talked about. No, these are two different things. क्योंकि 17th century में जो जिस context की मैं बात कर रहा हूँ, the Mughal, Yes. The climate anomalies that I'm talking about, it is a 17th century period that I'm talking about. And 17th century is a period where, in entire northern hemisphere, there is some kind of a climate change phenomena being witnessed. So यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, बर्फ जो विंटर है वो लंबी होने लगी है, जिसको कि हम लोग लिटिल आइस एज Yes. के रूप में जानते हैं हिस्ट्री में. तो वहाँ पर बहुत सारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे के स्टेट के ऊपर इन्वेजन हो रहा है,
और उसी में कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, तो बहुत से स्टेट के अंदर क्राइसिस होता है कॉन्फ्लिक्ट के कारण, और उसी के अंदर कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब विंटर लंबी हो जाती है वहां पर तो समर के सीजन में ही सिर्फ खेती हो सकती है, लेकिन वो समर छोटा हो गया है, तो एग्रीकल्चर फेलियर भी हो रहा है, सो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, एग्रीकल्चर फेलियर हो रहा है, और इन सब चीजों के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन उसी क्राइसिस के बीच कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जो सरवाइव कर जाते हैं। तो वो कौन से ऐसे स्टेट हैं? जैसे डच रिपब्लिक है। डच रिपब्लिक इसलिए सरवाइव करता है कि वो अपना वे आउट निकाल लेता है उसमें, कि केवल हम एग्रीकल्चर पर भरोसा नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। सो आपने देखा कि 17th सेंचुरी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडियन ओशन में निकल जाती है और फिर ट्रेड एक्टिविटी शुरू करती है। सो हमें ये क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि जब क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमेना आते हैं तो हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं, है ना। मुगल एनोमलीज की जब मैं बात करता हूं तो कैसे वो जुड़ा हुआ है, आपने सवाल तो सही पूछा, लेकिन बहुत कुछ हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप देखिए 17th सेंचुरी में मुगल्स का पीक समझा जाता है, मुगल एम्पायर का पीक समझा जाता है। उस समय शाहजहां जैसे रूलर हैं जो इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, ताजमहल बनाया, डिफरेंट अदर मॉन्यूमेंट्स बनाए, रेड फोर्ट बनाया, कितना ज्यादा रेवेन्यू लगा होगा। लेकिन वही एक ऐसा पीरियड, अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें तो 17th सेंचुरी में बहुत से डॉक्यूमेंट, मुगल डॉक्यूमेंट ही कह रहे हैं कि उस समय बहुत सारे ड्राउट्स आ रहे हैं, फैमिन्स आ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना जो 17th सेंचुरी में यूरोप को इफेक्ट कर रहा है, इंडिया में एल नीनो को लीड करता है। सो हमारा जो मॉडर्न डेटा है, जो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है, उसके बेसिस पर साइंटिस्ट ने ये बताया है कि कैसे 17th सेंचुरी में एल नीनो है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो एल नीनो का फ्रीक्वेंसी का बढ़ने का मतलब है कि मॉनसून फेलियर होना। एल नीनो जो जुड़ा हुआ है वो मॉनसून के फेलियर से जुड़ा हुआ है। जैसे आज भी जब हम एल नीनो की बात करते हैं कि ये एल नीनो ईयर है, इसका मतलब कि भारत में मॉनसून फेल करेगा। तो उस समय ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एल नीनो की, और बहुत सारे ड्राउट्स हो रहे हैं। बहुत से मुगल डॉक्यूमेंट, क्रॉनिकल जो है वो रिकॉर्ड करते हैं कि ड्राउट्स हो रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली जिस वक्त ये ड्राउट्स हो रहे हैं लगातार कई साल तक आगरा जैसे रीजन में, उसी समय शाहजहां जो है वो ताजमहल का निर्माण शुरू करता है। और ये जो कंट्राडिक्शन था, इसी ने मेरी सोच को जो है वो मुझे एक्चुअली सोचने के लिए उसने मजबूर किया, और मुझे लगा कि आई थिंक देयर इज समथिंग मोर टू बी सेड एंड टू बी रिटन अबाउट द मुगल हिस्ट्री। सो आज जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि मुगल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट वॉर्स, वेपन्स, दे आर्किटेक्चर एंड मेनी मोर थिंग्स, बट आई थिंक जो एनवायरमेंटल डायमेंशन है उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ह्यूमंस को इंपैक्ट करता है। सो मुगल्स, मेरे समझ से मुगल्स ने क्या वे आउट निकाला। शाहजहां को आपने देखा होगा कि 17th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, और साथ साथ नॉर्थ वेस्ट में उसका एक इन्वेजन भी बढ़ जाता है। औरंगजेब उसी पीरियड में आते हैं, औरंगजेब का इन्वेजन बढ़ जाता है, एक्सपेंशन की कोशिश करता है डेक्कन में, उसको वहां से मराठों का रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये जो सारी ये वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं, ये 17th सेंचुरी में ही हो रहे हैं। इसी समय शाहजहां भी एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, यानी उसका जो कोर एरिया है, जहां पर उसका मेजर रेवेन्यू कलेक्शन जहां से होता था, वो कहीं ना कहीं मॉनसून की मार झेल रहा था, और इसलिए उसको बाहर निकलना पड़ता है। तो इतिहास की ये जो समझ है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो हमें क्या बताती है कि मॉडर्न पीरियड में जो हम क्लाइमेट चेंज का चैलेंज, यही सवाल था, फेस कर रहे हैं जी, उसमें हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। है ना, हमें वे आउट निकालना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे सरवाइव करें। सो बेसिकली एनवायरमेंटल हिस्ट्री है क्या? एनवायरमेंटल हिस्ट्री ये नहीं है कि एनवायरमेंट आएगा और वो ह्यूमंस को इफेक्ट कर देगा। एनवायरमेंटल हिस्ट्री ये भी है कि ह्यूमन उसी चैलेंज को डिफरेंट सोसाइटीज कैसे अलग अलग डील करती है। सो सेम चैलेंज अलग अलग सोसाइटीज के लिए, सबके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अलग अलग सोसाइटी कुछ प्रॉस्पर करती है और कुछ डिक्लाइन कर जाती है। तो दैट वे वो जुड़ा हुआ है। आज का जो चैलेंज है उससे हम कह सकते हैं कि जो 17th सेंचुरी का क्लाइमेट चेंज हम पढ़ें, या उसके पहले का 14th सेंचुरी, 13th 14th सेंचुरी के बाद भी ऐसे ही क्लाइमेट फिनोमेना, जो मॉनसून है वो वीक हो जाता है।
वो भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से, और वो भी हमें सिखाता है कि हम आज क्या कर सकते हैं. So, sir, in your book, Speaking Rivers, you talked about the mid Ganga. So, you have researched the fluvial landscapes, the way rivers shift, and the change. Did the British break our relationship with the Ganga by treating it as a revenue source? क्या मतलब कहीं वो ऐसा तो नहीं था कि यहाँ आए तो सिर्फ सोना और हमारी संस्कृति और यही नहीं, साथ साथ हमारा पानी भी गंदा करके चले गए? आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे रिवर के साथ हमारा जो संबंध था, नदियों के साथ जो हमारा ट्रेडिशनल संबंध था, वो बड़ा रिलीजियस है. आपने जी, देखा है बिल्कुल. कि सारी नदियों को भारतीय पूजते थे. कहीं ना कहीं कोई हर नदी को पूजा जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, और नदियों को बड़ा एक तरह से कहने पूजनीय माना गया है, पवित्र माना गया है. पवित्र माना गया है. नाउ गंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम गंगा को ले लें. गंगा को इतनी प्रदूषित चारों तरफ हो चुकी है, उसके लिए स्टेट्स को बहुत तरह के गंगा सफाई अभियान चलाना पड़ रहा है. लेकिन आप एक चीज़ आपने कभी गौर किया है कि गंगा या कोई भी नदी वो हर साल अपने आप को खुद साफ करती है. उसमें हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी उस गंदगी को ले जाता है और समुद्र में बहा के ले जाता है. हमें उसको साफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर साल उसको साफ करते हैं. क्योंकि हम उसमें कचरा डाल रहे हैं. इसलिए क्योंकि हम जो कचरा जा रहा है उसमें उसको नहीं रोक पा रहे हैं. यस. सो देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी चेंज. हमारे पॉलिसी में प्रॉब्लम है. दिल्ली में यमुना है, आप देखिए, यमुना नदी का हाल एक कभी नहीं था. दिल्ली में यमुना नदी को आप देखिएगा तो बहुत सारे ड्रेन गिर रहे हैं उसमें. जी. नजफगढ़ ड्रेन कभी एक ऐसा ड्रेन था जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली से आता था, साउथ वेस्ट में है, वहां से होता हुआ था, बहुत लंबा ड्रेन है. लेकिन उस ड्रेन में बीच बीच में कई जो इलीगल बस्तियां, उन लोगों ने अपने ड्रेन खोल रखे हैं. वेस्ट जाता है उसमें, और वही वेस्ट जाके नजफगढ़ ड्रेन का पानी जो है यमुना में मिलता है. तो ये सारी नदियों का यही हाल है. हम फैक्ट्री का पानी, कोई उसके लिए हमने कोई उपाय नहीं किए हैं. फैक्ट्री का पानी उसमें जा रहा है, किसी ने नहीं सोचा इसके बारे में. बिल्कुल. तो लोगों की समझ तो सही थी शुरू से. अब क्या होता है, ब्रिटिश, आपने सवाल पूछा कि ब्रिटिश ने उसमें क्या बदलाव किया. देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य जब यहां पे स्थापित होता है, कॉलोनियल रूल जब स्थापित होता है, उन्होंने ना केवल ये सारे चीजें जो हम बात करते हैं बदलाव की, इन बदलावों को ही नहीं किया, हमारी सोच को भी बदल दिया था, हमारी समझ को बदल दिया था. ये जो बाढ़ आती है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं, बाढ़ कभी समस्या नहीं थी हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए. लोग नदियों के साथ रहना जानते थे. उनको पता था कि इस समय बाढ़ आएगी, और लोग अपने ऊंचे के इलाके में चले जाते थे. लेकिन क्योंकि उनको पता था कि ये बाढ़ जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाढ़ अपने साथ एक ऐसा उर्वरक मिट्टी भी लाती है जो पूरे उनके खेत को उपजाऊ बना देती है, और उससे प्रोडक्शन बढ़ता है. ब्रिटिश सरकार आई, उनको लगा कि नहीं, ये जो नदियां हैं, इसमें जो पानी उफनता है, ये एक समस्या है. उसको उन्होंने बाढ़ का नाम दिया, और कहा कि बाढ़ को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि उससे उनका हर साल रेवेन्यू इफेक्ट होता है. तो उन्होंने एम्बैंकमेंट्स बनाने शुरू किए, यानी नदियों को एक निश्चित आकार देना शुरू किया, और वहीं से समस्या शुरू होती है. तो मुझे लगता है कि ब्रिटिश सरकार, आप जो कह रहे थे कि क्या उन्होंने वो हमारा जल भी जहरीला कर दिया, जल जहरीला ही होता है अगर आप उसको संकुचित कर देंगे. बिल्कुल. नदियों को संकुचित करने का मतलब है कि आपने उसको बांध कर रख दिया है, क्योंकि नदी जो है वो बड़ा फ्री है, फ्री मूवमेंट होता है उसका, और वो अपने तरीके से बहती है. जैसे ही आप उसको बांधेंगे, उसमें क्या होगा कि आर्सेनिक, आज जो समस्या आप देखिए, गैंजेटिक बेल्ट में बिहार और बंगाल जैसे इलाके, जो इतनी सारी नदियां हैं, वहां आर्सेनिक की प्रॉब्लम हो रही है. क्यों? क्योंकि गंगा नदी का पानी या बाढ़ का पानी जो है उन इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा है. एक्विफर्स, जो ग्राउंड वाटर है, वो शुद्ध नहीं हो पा रहा है, आपने उसको संकुचित कर दिया. तो ये सारी चीजें, उसके कारण जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक बढ़ गया है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो आज हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत ब्रिटिश पीरियड में हो चुकी थी. और जब हमें आज़ादी भी मिली तो हमने उसको रिवर्स नहीं किया, हमने उसको और भी ज़्यादा
मजबूत कर दिया। उसी आइडियोलॉजी पर चलते रहे हम, जो एम्बैंकमेंट का आइडिया था उसको और अपने मजबूत कर दिया। और आज भी किए जा रहे हैं। As a senior professor at DU, when you see students wearing masks on campus, do you feel education system has failed to teach ecological literacy? साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आप बहुत सालों से वहाँ हैं, कहीं ना कहीं आप एज अ स्टूडेंट थे तब से आप वहाँ हैं, तो आपको अभी देख के कई बार मायूसी नहीं छा जाती कि मैं जब था तो मैंने किस तरीके से, किस नज़रिए से दिल्ली को देखा है, और जो मेरे आज जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो खैर बहुत कॉन्शियसनेस है इसको लेकर। मैं जानता हूँ लोगों को, जो आज पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण की समस्या दिल्ली में है, इससे हर आदमी त्रस्त है। लेकिन जो जेंजी है उसको ये नहीं पता है कि दिल्ली कभी बड़ी स्वच्छ होती थी। ये जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने होते थे, ये बड़े मनोरम होते थे दिल्ली में। और मैंने तो स्कूलिंग भी वहीं से की, मैंने अपना ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, मास्टर्स भी किया। कई वर्षों से मैं दिल्ली में हूँ और मैंने दिल्ली को आगे बढ़ते देखा है। दिल्ली में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना इतना बढ़िया होता था कि लोग दूर दूर से, साउथ इंडिया से, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, साउथ इंडिया से लोग घूमने आते थे। क्योंकि यहाँ पर लोग, दिल्ली जो है उस समय बड़ा अच्छा होता था मौसम, ठंडी ठंडी हवा चलती थी, और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होती। दिसंबर का अंत आने के बाद स्वेटर पहनते थे। लेकिन ओवर द ईयर्स आपने क्या देखा कि दिल्ली धीरे धीरे इसी महीने में प्रदूषित होने लगी। बहुत ज़्यादा फॉग, और फॉग से ज़्यादा स्मॉग। तो ये जो स्मॉग है, ये बेसिकली है क्या? पॉल्यूशन और हमारा जो फॉग है वो दोनों का मिश्रण है। 2006 में मुझे याद है, मैं उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में चूंकि पढ़ा भी रहा था उस समय, 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था और उसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक अच्छा आदेश दिया था कि सारी यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया, उन सबको पर्यावरण विषय पर एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। और जैसा से हमेशा रहा है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई तो सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो उस तरीके से जब ये ऑर्डर आया तो सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय को ही ये कहा गया कि भाई एक मॉडल के रूप में आप सिलेबस डेवलप करिए जो विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा सके। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक सिलेबस डेवलप किया जो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। वो उसका टाइटल था एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, और उसमें पर्यावरण के विषयों पर एक तरह से स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताया जाता था। मुझे लगता है कि वो विषय बड़े लाइटली तरीके से हम पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, इंटरेस्ट लेते थे बच्चे, धीरे धीरे सजग भी हुए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में वो सजगता तो थी, और अभी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने पर्यावरण से संबंधित कई अन्य विषयों को पढ़ाना शुरू किया है, और खासकर बड़ा इंटेंस रिसर्च हो रहा है। लेकिन ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो समझ है, सोच है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलती चली गई है। हमें लगता है कि जो आज की परिस्थिति है वो पहले भी थी। तो पूरा जो नया जनरेशन है उसको समझ नहीं है ना इसकी, कि भाई पुराने समय में दिल्ली बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो उसको लगता है कि ये जो समस्या आज हम देख रहे हैं ये पुरानी समस्या है, अब इससे हम कैसे निपट सकते हैं, ये तो नेचुरल है, हिस्टोरिक है, ये हिस्टोरिक है और बड़ा नेचुरल है, हो सकता है। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, नेचर कुछ और कहता था, ये हमने समस्या बनाई है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि मेट्रो आने के बाद इतना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ा है, लेकिन हमारे उसके साथ साथ व्हीकल्स भी बढ़े। आज देखिए कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा कार की बिक्री होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऐसा नहीं बनाया कि लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, हमने फ्लाईओवर्स ज़्यादा बनाए ताकि लोग कार ज़्यादा इस्तेमाल करें। और कार से जो निकलने वाला ये जो कार्बन है, उत्सर्जन है, ये सबसे बड़ी समस्या है वहाँ की। क्योंकि हम बहुत तरह की बातें करते हैं कि पराली जल रही है पंजाब में, हरियाणा में, और किसान पराली जला रहे हैं, लेकिन वो पराली का जलाने का जो सिलसिला है वो तो 15 नवंबर तक खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी समस्या बनी हुई है।
इसका मतलब वो पराली जलाना जो है वो सबसे बड़ी समस्या, वो कोई सबसे बड़ा कारण नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी व्हीकल्स है। हमने इतनी ज्यादा संख्या में व्हीकल्स हम चला रहे हैं। तो सरकार ने जो अब कदम उठाए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करें पेट्रोल कार को और डीजल कार्स को, आई थिंक वो एक सॉल्यूशन है। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी और ज़्यादा पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। और एक्सेसिबल बनाने से मतलब मेरा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीडर बसेस बनाएं ताकि लोग मजबूर होके नहीं, मेट्रो को अपने समझदारी से सोचे कि भाई मेट्रो ही हमारे पास एक सबसे बढ़िया सुविधा है। सो मुझे लग रहा है कि और उसको चीप बनाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को भले ही सब्सिडी देनी पड़े, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सब्सिडी देके इतना चीप बना दें कि हर व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहे। तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान है हमारी सोच बदलने की जरूरत है। एक इंडियन जो कम्युनिटी है हमारी, इसमें एक साइकोलॉजिकल बैरियर ये भी है कि हम हमेशा चीज़ों को ओन करने के बारे में सोचते हैं, जबकि वेस्टर्न में है कि हम कहीं वो रेंट पे भी चलते हैं, वो लीज पे भी चलते हैं, बट हमारे यहाँ हमेशा से है कि ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, मैं इस पे हक जमाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी भी इसमें अफेक्ट करती है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको वो सोचते हैं कि ये सरकारी चीज़ है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और गाड़ी के बारे में सोचते हैं कि मेरी कार है, मैं चलाऊंगा, मैं इसका मालिक हूँ, तो मर्जी के नहीं। लेकिन उसका उल्टा है। आप ये देखिए कि जो कारें खरीदी जा रही है वो सारी की सारे लगभग 99% कारें जो हैं वो आप लोन पर ले रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कहने के लिए वो मेरी है, वो कहने के लिए आपकी है। हाँ। लेकिन ये तो बस समझ का फेर है। समझ का फेर है, बिल्कुल। वो जो कार है वो आपकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो बैंक की है। बैंक की है। सर ऐसा आप जैसे इतने साल आप दिल्ली में आप रहे, आपने वहाँ समय बिताया, आपका कोई ऐसा रूटीन था विंटर का जो आप अपने विद्यार्थियों के साथ बांटते हैं कि भाई हमारे टाइम पे दिल्ली ऐसी थी और हम तो ये किया करते थे, ऐसी कोई मेमोरी? मेरी मेमोरी ये है कि एक ऑटम वेकेशन होता था अक्टूबर में जी, वो खत्म हो गया पिछले 20 साल से। ऑटम वेकेशन अक्टूबर में होता था, जब उस वेकेशन 14 दिन का वेकेशन होता था, उसमें हर स्टूडेंट अपने होम टाउन जाता था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी बीइंग ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत दूर दूर के इलाके से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो एक तो वो खत्म हुआ, दूसरा होता था विंटर वेकेशन। बड़ी एक्सट्रीम विंटर पड़ती थी। आज जो विंटर है वो तो स्मॉगी है, बट जो उस समय का विंटर था बड़ा चिली विंटर होता था। आकाश साफ जैसा हिल्स में होता है, और वो जो चिली विंटर होता था इसीलिए वो विंटर वेकेशन दिया जाता था। तो हालांकि उसका एक कारण ये भी है कि हम सेमेस्टर सिस्टम में आ गए हैं। सेमेस्टर सिस्टम में इतने ज़्यादा ब्रेक्स होना बड़ा मुश्किल हो गया है। बट मुझे याद है कि उस दौरान विंटर वेकेशन में हम लोग ज़रूर जाया करते थे। मैं भी जब स्टूडेंट था तो अपने होम टाउन जाया करते थे। और उसके अक्टूबर से लेकर, यानी ऑटम ब्रेक से लेकर जो विंटर ब्रेक का पीरियड होता था, वो हमारे स्टडीज़ का पीक पीरियड होता था। कॉलेज एजुकेशन में स्टडीज़ का पीक पीरियड होता था। उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती थी। और फिर हम जब जनवरी महीने में वापस आते थे, उसके बाद फेस्टिवल का सीज़न शुरू होता था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कल्चर है, उसको हम लोग कहते हैं, हर कॉलेज एक कल्चरल फेस्टिवल करता है। सो वो जो पीरियड है 15 जनवरी के बाद शुरू होता था, और 15 जनवरी से लेकर फरवरी महीने तक वो फेस्टिवल्स होते थे हर कॉलेज में। आज इस कॉलेज में, कल दूसरे कॉलेज में होता था। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे आज भी याद हैं और बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। अब बहुत कुछ बदल चुका है, सेमेस्टर सिस्टम आने से चीज़ें बदल गई हैं, एकेडमिक कैलेंडर बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ वो दिल्ली के क्लाइमेट से जुड़ा था। चूंकि फरवरी का क्लाइमेट बड़ा ही सूदिंग होता था, इसलिए उस समय ये फेस्टिवल्स रखे जाते थे। क्विक फायर थॉट्स, मुगल एरा ड्रॉट वर्सेस मॉडर्न डे स्मॉग, व्हिच इज हार्डर फॉर अ हिस्टोरियन टू डॉक्यूमेंट? Mughal era drought. Mughal era drought. Okay. If the Ganga could speak to the current Council of Ministry, what would her first complaint be? Why are you keeping me in check? Fieldwork in arid Rajasthan or research in flooding mid-Ganga? Research in flooding mid-Ganga. Decoding prehistoric cave art or analyzing 21st century satellite? Decoding prehistoric cave art. A walk through a Mughal
Charbagh or and trek through a colonial teak. मुगल चारबाग. Historical archive, dusty papers, or vernacular literacy that includes story and legends. Vernacular literature, stories and legends. Writing a scholarly book or reviewing political literature. Writing a scholarly book. Environmental history or political history. Environmental history. The Little Ice Age or modern global warming. Little Ice Age. Teaching at Delhi University or research at the Rachel Carson Center, Munich. A very difficult question, but research is my actually first love. So researching at Rachel Carson Center, Yes. but teaching at Delhi University allows me to survive. It's the bread and butter. Yeah, it's the bread and butter. Okay. तो बच्चे सर ऑफेंड तो नहीं होंगे इससे? कोई ऑफेंड नहीं होंगे. I teach them with all love and with all kind of my energy. Yeah, that's truth. We can see that from your knowledge, sir. That's really inspiring. The Yamuna of the 1700s or the Ganga of the 2020s? Yamuna of the 1700. Traditional step well, that is Baulis, or modern high-tech dams? Traditional step wells. Solving the smog crisis or restoring the fluvial, that is river landscapes? Restoring the fluvial landscapes, river landscapes. Mission life, that is an individual action, or a national policy, that is a government action? Mission life. Nature as a provider, that is resource, or nature as a character, living entity? Nature as a character. Research or teaching? Research. I think we already had the answer from the DU. So, लेकिन ये research से इतना प्यार क्यों? ये कब हुआ, कैसे हुआ ये प्यार? देखिए, रिसर्च का प्यार मेरा आज भी है, और टीचिंग के साथ भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं रिसर्च में अपना समय निकालता हूँ, और थोड़ा बहुत भी समय निकलता है क्योंकि जैसे मेरे साथ पीएचडी रिसर्चर्स हैं, कई मैंने पीएचडी कराई है और अभी भी 8-9 स्टूडेंट्स मेरे साथ रजिस्टर्ड है. उन सब के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ, उनके रिसर्च में उनसे उनकी तरह ही उसी शिद्दत से उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो टुवर्ड्स रिसर्च है, लेकिन उस रिसर्च से जो मुझे एनर्जी मिलती है उसी को मैं टीचिंग में फिर पढ़ाने में उतना एक्चुअली एनर्जी के साथ आ पाता हूँ. सो मेरे जो टीचिंग का मेथड है, मैं हर वर्ष मैंने पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ, पुरानी चीज़ों में नई चीज़ें हमेशा शामिल करता हूँ. सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता हूँ, लेकिन उस सिलेबस में हमेशा नई रीडिंग्स, नए रिसर्च, ये मेरा एक तरह का कहें तो फोर्टे है. और मेरे क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको मानते हैं कि और इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सर हर साल कुछ नई चीज़ें बताएंगे. और एनवायरमेंटल हिस्ट्री चूँकि एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का एक इवोल्यूशन हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. पॉलिटिकल हिस्ट्री से, इकोनॉमिक हिस्ट्री से, सोशल हिस्ट्री से, जेंडर हिस्ट्री से, आज हम एनवायरमेंटल हिस्ट्री पर हैं. तो मुझे लगता है कि जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री एक बड़ा ही अपकमिंग सब्जेक्ट एरिया ऑफ रिसर्च है, और स्टूडेंट्स बड़ा इससे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है इस पर और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. और मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत वक्त मिले, ताकि टीचिंग से जो भी वक्त मिले, छुट्टियों का समय हो, वैकेशन हो, तो मैं अपना समय रिसर्च के लिए दे पाऊँ, और कुछ नए आर्टिकल जब भी मौका मिलता है, कुछ रिसर्च आर्टिकल लिख लेता हूँ जो जर्नल में प्रकाशित हो पाएँ. तो ये मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और मुझे लगता है उससे मुझे और एनर्जी मिलती है टीचिंग करने के लिए. मैं और ज़्यादा एनरिच्ड होता हूँ नॉलेज के टर्म्स में, और मैं अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स के साथ उसको बांट पाता हूँ. सो ये एक जो टॉपिक था, इसको हम चाहेंगे थोड़ा इलेबोरेट करें कि जो हिस्टोरिकल आर्काइव्स हैं, जो पेपर्स हैं, और जो वर्नाकुलर लिटरेचर है दैट इंक्लूड स्टोरी एंड लेजेंड्स, सो तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप कुछ अलग एंगल से हमें ये समझा सके थोड़ा सा. देखिए, जो आर्काइव्स है और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्टेट रिकॉर्ड्स है जी. और मुझे लगता है कि एक बड़ा फेमस हिस्ट्री के ज्ञाता रहे हैं और स्कॉलर रहे हैं, उनका नाम है E.H. कार. उसकी एक किताब है व्हाट इज़ हिस्ट्री के नाम से हम पढ़ते हैं. उन्होंने एक बड़ा फेमस उनका कोटेशन है, वो कहते हैं
कि स्टडी द हिस्टोरियन बिफोर यू स्टडी द हिस्ट्री। उसका कहने का मतलब है कि हम हिस्टोरियन को पहले समझें कि जिसने उसको लिखा है। तो हिस्ट्री में क्या होता है, दो तरह के सोर्सेज होते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ये जितने रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आर्काइवल रिकॉर्ड्स, ये प्राइमरी सोर्स है और प्राइमरी सोर्स के बेसिस पर ही सारी हिस्ट्री लिखी जाती है। सो जो मॉडर्न राइटिंग देखते हैं वो बेसिकली सेकेंडरी राइटिंग है बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। ओके, नाउ जब प्राइमरी सोर्सेज के रूप में हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है उसको ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। मेरे हिसाब से वो ज़रूरी तो है, लेकिन वर्नाकुलर रिकॉर्ड्स जो हैं, जो रीजनल लिटरेचर्स हैं, उनको हम लोगों ने अब तक अहमियत नहीं दी है, केवल इस नाम से, क्योंकि वो फुल ऑफ स्टोरीज है, कहानियां हैं, और उसको हमने इस कारण से उसको अलग कर दिया है कि इतिहासकारों ने ये कहा कि ये तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, इसमें हिस्ट्री खोजना तो बड़ा मुश्किल है, इसमें तो हिस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि मिथ है जहां तो वहां हिस्ट्री है, स्टोरी है तो हिस्ट्री नहीं है। मुझे लगता है कि अब इतिहासकारों को ये समझ आया है 21st सेंचुरी में, इनफैक्ट 20th सेंचुरी के अंत आते आते इसकी समझ बनने लगी थी कि नहीं, वो उससे भी ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि वो स्टेट सोर्सेज जो होते थे वो किसी ना किसी बायस से लिखे जाते थे। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब और उसका जो क्रॉनिकलर है, स्टेट क्रॉनिकलर, वो अपने बारे में कुछ लिखवाना चाह रहा है, वो औरंगजेब को कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा, नहीं तो उसका गला उतार दिया जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से स्टेट के सोर्सेज, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को देख लीजिए, वो कभी भी ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को क्वेश्चन नहीं, उसमें आप देखिए तो ब्रिटिश पॉलिसीज को क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन इतिहासकार क्या करता है कि उसकी गहराई में जाता है, उस रिकॉर्ड्स के डिस्कशन को पढ़ता है और तब फिगर आउट करता है कि कहां पर ब्रिटिश पॉलिसी के कंट्रडिक्शंस है और फिर उसको उजागर करता है। लेकिन अगर आप देखिए तो ये जो वर्नाकुलर लिटरेचर है वो बाय नेचर कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, वो बाय नेचर क्या होता है, बड़ा ही अनबायस्ड होता है, क्योंकि वो समाज का रिफ्लेक्शन देता है, और समाज में जो चीजें हो रही थी वो किसी गिवन आइडिया से लिखी और बोली नहीं जा रही थी। लेकिन इसे फैक्ट्स में डाइल्यूशन भी आता होगा बहुत ज्यादा। कई बार फैक्ट में डिफरेंट डायमेंशंस भी आते हैं और डिफरेंट तरीके का विचार भी आता है, लेकिन वो कई बार जो गिवन फैक्ट है, जो आर्काइवल रिकॉर्ड में मिलता है, उसको क्वेश्चन भी करता है। ओके। तो हालांकि हर स्टोरी का, हम वर्नाकुलर लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो हर स्टोरी का एक कंटेक्स्ट भी होता है जी। तो जैसे हम जो क्रॉनिकल होते हैं, स्टेट रिकॉर्ड्स होते हैं, वो स्ट्रेट अवे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बताता है कि ये राजा ने ये किया और इसके ये अचीवमेंट है, लेकिन वर्नाकुलर लिटरेचर उसके कंट्रडिक्शंस को इंडिकेट करता है, जिससे चैलेंजेस अपीयर होते हैं ना, हम फिर इस पे रिसर्च, वो चैलेंजेस अपीयर होते हैं और फिर हम उस पर रिसर्च ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो बहुत सारे आपको वर्नाकुलर लिटरेचर मिलेंगे जिसमें इस तरह की स्टोरीज है, लेकिन हिस्टोरियंस ने उसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश की है कि उस स्टोरी के आधार पर आप कंटेंट ढूंढने की कोशिश ना करें, उस स्टोरी के कंटेक्स्ट को देखें। बिल्कुल। आखिर ये स्टोरी किस समय लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई और किस ऑडियंस के लिए लिखी गई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और तब जब हिस्ट्री को इतिहासकार जब उस तरह के वर्नाकुलर लिटरेचर को उस तरीके से समझने की कोशिश करता है तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और एक नया डायमेंशन देता है हिस्टोरिकल राइटिंग को। बिल्कुल। Vibhu, finally, as a new nominated council member of the AAEH, what is your biggest suggestion for India, and how do we stop being society that just manages disaster and start being a society that restores its own history? देखिए, for India, I think India has a very rich tradition of environment conservation, and what India can do is not talking only about disaster, कि घटना हो जाए और उसके बाद हम डिजास्टर की बात करें जी। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें पुराने जो established ट्रेडिशन थे, पुराने कंजर्वेशन के, उसको फॉलो करना चाहिए। आई थिंक ऑल द कंट्रीज अराउंड द ग्लोब, दे आर फॉलोइंग दोज ट्रेडिशन, दे आर गोइंग बैक टू द दोज कंजर्वेशन मेजर्स, और इंडिया में ऑलरेडी उस तरह के ट्रेडिशन है, उसको सिर्फ रिवाइव करने की जरूरत है। जी। सो मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न नोशन है,
अबाउट कंजर्वेशन, उससे हटकर हम अपना जो पुराना नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंजर्वेशन है, उसको हम फिर से ला सकते हैं अलग अलग फॉर्म में. जैसे हम फॉर एग्जांपल स्टेप वेल अगर आप देखिए जी. तो आज है क्या, आज हम लोग बात करते हैं ना कि हम अपने एक्वीफर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाटर कंजर्व करें, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मॉडर्न पाइपलाइंस डाल रहे हैं. स्टेप वेल्स बेसिकली क्या था, स्टोरेज ऑफ वाटर था. बिल्कुल, है ना, और उसका फिल्ट्रेशन होता था. आप रानी की वाव जाइए, रानी की वाव से करीबन 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा पॉन्ड है. सरस्वती रिवर कभी जो हुआ करती थी, जो एक्सटिंक्ट हो गई है, वहां से वो पानी आता था, उस पॉन्ड में जमा होता था, और पानी जो है फिल्टर करके और फिर जाके रानी की वाव में जमा होता था. सो चैनल बना हुआ था. और इस तरह से राजस्थान के स्टेपवेल्स अगर आप देखिएगा, दूर दूर से पानी, जो बारिश का कोई कम दिनों के पानी बारिश होती थी, उस पानी को दूर दूर से लाया जाता था और जाके स्टेपवेल में वो जमा होता था. तो वहां पर अगर आपको बड़े बड़े स्टेपवेल हैं, राजस्थान में आपको टंके भी मिलेंगे. और ये जो टंके हैं, अगर आप उन टंकों का देखिएगा, दूर दूर से चैनल्स आए हुए हैं. सो इंस्टेड ऑफ दीज टैंक्स गिविंग अ वाटर सप्लाई, there are channels which bring water to the tanks. तो ये जो सिस्टम है, मुझे लगता है ये मॉडर्न फॉर्म में आज जो हम कर रहे हैं, आज जैसे मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज में ये सारी बिल्डिंग्स को कहा गया कि नहीं, आपके पास एक रिचार्ज वेल होना चाहिए, वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम होना चाहिए. आई थिंक ये क्या है, ये हमारा एंशियंट एनवायरमेंटल नॉलेज है, जिसको हम मॉडर्न फॉर्म में हम ला रहे हैं. बिल्कुल. और इस तरह के बहुत सारे हमारे नॉलेज हैं, नॉलेज ट्रेडिशन है, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने देश में. बिल्कुल बिल्कुल. ग्रोथ सर वहीं से आएगा. सो सर, लास्ट आई वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. And history isn't just in the archives, it's in the breath we take. Thank you, Vipul sir, for joining us and showing us that to save our future, we must listen to our rivers and our past. To our listeners, every breath is a piece of history. Please make it count. Thank you, Vipul sir. At last, I would like to hear from you कि आपको आज हमारे कैंपस में आए, आपको कैंपस कैसा लगा? आप हमारे फैमिली का पार्ट हैं. आप सर पहली बार तो नहीं आए हैं, तो प्लीज आप बताइए आपको कैसा लगा सर आज आके. See, let me tell you very frankly, I've been coming to this campus, I think this is my third or fourth visit, and I've seen this campus growing. And the day I think when it was established, I saw this campus which was in complete forest kind of an environment. ग्रीन एनवायरनमेंट में था, पूरे चारों तरफ पेड़ पौधे थे, और अभी भी उसी तरह की ग्रीनरी मेंटेन्ड है. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बट मुझे एक चीज़ जो मुझे हमेशा लगता है कि क्यों यूनिवर्सिटी सिस्टम, अगर आप पुरानी यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, ऑल लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, पटना यूनिवर्सिटी को देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखिए, कैलकाटा की यूनिवर्सिटी को देखिए, जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रही है इंडिया की, जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ रही है, ये सारी यूनिवर्सिटीज के कैंपस ग्रीन थे. विश्व भारत शांति निकेतन को देखिए, इन सारे यूनिवर्सिटीज का जो कैंपस था वो भी ग्रीन सीरीन एनवायरनमेंट में बना हुआ है जी. और जिस तरीके का सीरीन और काम एनवायरनमेंट, ट्रैफिक कंजेशन और भाग दौड़ से दूर जो जिस तरह का कैंपस ये बना हुआ है, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. आपने अगर एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, जिसके बारे में बहुत जगह आपने सुना होगा, भारत के जो ये परंपरा थी, ज्ञान की परंपरा, वो हमेशा फॉरेस्ट में दी जाती. बिल्कुल. जो गुरुकुल होते थे उसी तरह के फॉरेस्ट के अंदर होते थे, और वो शहरों की भाग दौड़ से दूर होते थे. तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, जो मुझे लगता है कि ITM SLS बड़ौदा में मुझे देखने को मिलता है. और जो दूसरी बड़ी अहमियत रखने वाली बात है, जो मुझे लगता है कि डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटी से, मैं कई यूनिवर्सिटीज़ गया हूँ इंडिया के, यहाँ पर जो जिस तरह के स्कल्पचर्स और कैंप्स, आर्ट कैंप्स और स्कल्पचर के कैंप्स लगाए जाते हैं, मुझे लगता है ये
एक तरह की सेंसिटिविटी बिना टीच किए हुए स्टूडेंट्स को देता है। और चूंकि यहाँ पर तो खैर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे लगता है जब मैं पहली बार आया था तो इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट का कॉलेज हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन अब तो डिजाइनिंग और कई और तरह के कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज भी इमर्ज बिल्कुल, किया yes, है, मेडिकल कॉलेज आगे आने वाला है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस तरह के जो कैंप्स होते हैं डिजाइनिंग के, स्कल्पचर्स के, और दूर दूर से आर्टिस्ट आते हैं, वो स्टूडेंट्स को एक तरह से डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के साथ रहने के लिए समझ पैदा करता है। और मुझे लगता है ना ये एक तरह का ट्रेनिंग है बिल्कुल फॉर सर। टॉलरेंस, जी, है ना, ये कि कहीं ना आप इनको- एक समाज में रहते हैं और डिफरेंट तरह का आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर है, लैंग्वेज है और स्कल्पचर है, और उसको हमें समझना जरूरी है, उसके साथ सेंसिटिविटी रखना जरूरी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक एज ए यूथ कि भाई हम टॉलरेंट रहें, सबके साथ रहने की कोशिश करें और उसके सबके साथ सरवाइव करें और ग्रो करें। ये मुझे लगता है कि सबसे जो इस यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ है जो इसको बहुत आगे ले जाएगा। Thank you so much, sir, for being with us. Thank you, ITM SLS Baroda University and viewers for this opportunity. And thank you, sir, for being with us.